Bismillahirrahmanirrahim. So today we have this topic, that is analysis of beams and frames. So we will cover this whole lecture in multiple lectures. So for today we will discuss only the analysis of beams. So let us go towards the lecture outlines. So we have these lecture outlines: shear and moment diagrams for beams, shear and moment diagrams for frames. Then we have moment diagrams constructed by method of superposition, and finally we have deflected curves. So first of all, we will cover this shear and moment diagrams for beams. These shear and moment diagrams for beams and frames, these are the major part of this whole lecture. So let us discuss this shear. You people have already heard that SFDs and BMDs, like shear force diagram and bending moment diagram. So in this particular lecture we will uh, try to learn how to draw these diagrams both for beams and frames as well. So let us move towards the lecture. So initially it is giving you an idea that how do we draw these diagrams, but drawing these diagrams is a separate thing, but there is a science, there is some derivation, there is some equations, there is some technical reason behind every figure. So how do we draw these diagrams? We will draw these diagrams based on the coming derivations. So this derivation is for our understanding, but this is not not important from examination point of view. Like आपको अगर क्वेश्चन कोई एग्जाम में आता है तो आपको shear force और bending moment diagram का क्वेश्चन आएगा, ना कि आपको ये derivation करनी होगी. So let us learn this diagram. So I hope my slides are visible to everyone, and I have turned on this uh, this slide share mode, so you people will be able to see the slides in animations. So please focus on the slides. So imagine we have an irregular kind of force on acting on the beam, right? And this is a beam, this is a pin support, and this is a roller support. And you already know, here we have two reactions. Here will be two reactions, AY and AX, and here we'll have only one reaction, that is DY. So, and also imagine that there are number of point loads acting on at various locations on this beam. And please note that this load, this is neither uniformly distributed load, neither is it is gradually varying load, and nor this is a point load. So ये एक इस तरह का लोड है कि मतलब इरेगुलर सा है, इसका कोई मैग्नीट्यूड किसी भी जगह फिक्स नहीं है. तो अब हमने डिराइव करना है कि shear force और bending moment diagrams कैसे बनती हैं, लेकिन उनके लिए जो इक्वेशंस है वो हमने बेसिकली इस फिगर से हमने वो इक्वेशंस को ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे कुछ आपके मैथमेटिक्स एफएससी में जो आपने पढ़ी है, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, वो कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे. तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे मोमेंट m1 m2 लग रहा है, ठीक है. और ये जो लोकेशन है इसको उसने x का नाम दे दिया हुआ है. इसी तरह ये जो B और C के दरमियान एक जो है ना एरिया, उसने ये एक बीम का एक सेगमेंट छोटा सा लिया हुआ है, ये डेल्टा x है, ठीक है.
ये वाला, ये जो वाइट है इसको हमने डेल्टा एक्स का नाम दिया हुआ है। अच्छा, ये जो डेल्टा एक्स हमने लिया है, ये बीम का हमने उतना पोर्शन लिया है कि इस डेल्टा एक्स पे जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एरिया पे। मतलब लोड जो है ना, ये जो छोटा सा डेल्टा एक्स हमने लिया है, इस पर लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम यूडीएल कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने बीम का उतना पोर्शन लिया है कि जिस पे हम एज्यूम कर सके कि लोड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे नीचे कंसीडर कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को उसने ओ का नाम दिया हुआ है, चूंकि इसके अबाउट वो मोमेंट्स लेगा, और ये हमारा डेल्टा एक्स है जो हमने यहाँ से ये वाला कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये डब्ल्यू एक्स इसके ऊपर जो लोड लग रहा है या फोर्स वो लग रहा है, वो उसका, ये डब्ल्यू एक्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और अब आपको पता है कि जब हम लोड को यानी कि यूडीएल को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके लेंथ के साथ या डिस्टेंस के साथ, उस बीम के उस लेंथ के साथ, टोटल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पॉइंट लोड यहाँ पे लगेगा डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये इसका पॉइंट लोड हो गया। और ये हमें पता है कि ये एक्ट कहाँ पे होगा, ये सेंटर में होगा। अब इस सेंटर वाले डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि ईटा डेल्टा एक्स। अब हम यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई 2 भी कर सकते हैं इसको, लेकिन चूंकि हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो फ्रैक्शन में जाने से बचने के लिए, हम इसको ईटा डेल्टा एक्स का नाम दे देते हैं। मतलब ये हाफ डिस्टेंस जो है, दिस इज ईटा डेल्टा एक्स, कंप्लीट डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारा, मतलब हमने यूडीएल को कन्वर्ट कर दिया, ये जो डॉटेड लाइंस है, यूडीएल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, पॉइंट लोड में, ये पॉइंट लोड। और इसी तरह पॉइंट लोड लगेगा कहाँ पे, डेल्टा एक्स पे, दोनों साइड से डेल्टा ईटा डेल्टा एक्स, सॉरी। तो ऑल राइट, अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली चूंकि हमने बीम को दोनों साइड से काटा हुआ है, दोनों साइड्स पे मूवमेंट होंगे। ठीक है, और दोनों साइड्स पे इंटरनल फोर्सेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो दोनों साइड्स पे इंटरनल फोर्सेस होंगी। तो यहाँ पे शेयर फोर्स और यहाँ पे मूवमेंट। इसी तरह यहाँ पे इस ओ पे, ठीक है, इस पे भी शेयर फोर्स, डेल्टा एक्स कौन से वाला ये जो मतलब इस साइड, चूंकि इस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे v प्लस डेल्टा वी, इसी तरह मूवमेंट भी उसमें डेल्टा m जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसको आपने मिक्स नहीं करना, बस आप इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखें, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसकी बिल्कुल पीछे बेसिक्स में हमने मतलब इसकी डेरिवेशन में हमने नहीं जाना। तो जस्ट आप याद रखें कि इस तरफ मोमेंट और इस तरफ शेयर फोर्स, यहाँ पे भी मोमेंट और शेयर फोर्स, बट इस साइड पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये डेल्टा एक्स या डेल्टा वाला जो है ना, वो सेगमेंट भी साथ आ जाएगा, मोमेंट के भी और शेयर के भी। अब हमें पता है कि हम वही जो हमारे पास तीन इक्वेशन है कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो। तो हम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो इस पे लेंगे, फिर इसी तरह सिग्मा मोमेंट एट ओ हम इस पे जीरो लेंगे, और सिग्मा एफ एक्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम पहले सिग्मा एफ वाई लेते हैं। ठीक है, और अपवर्ड फोर्सेस हमें पता है कि वो पॉजिटिव हैं। तो एफ वाई में हमारे पास एक फोर्स है, एफ वाई में हमारे पास एक फोर्स, ये शेयर फोर्स वी है, ये वाली। ठीक है, ये वी आ गई। फिर इसी तरह एक ये वाली फोर्स है जो कि डाउनवर्ड लग रही है, वी प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी, और ये सारी की सारी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास वर्टिकल फोर्स है, दैट इज डब्ल्यू एक्स और डेल्टा एक्स, तो वो भी डाउनवर्ड है, तो वो भी नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं। तो हमने चूंकि फाइंड आउट करना है डेल्टा वी, ठीक है, हम इस पे कर रहे हैं, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू शेयर इज इक्वल टू, इसको जब रीअरेंज हमने किया तो वो आ गया हमारे पास माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब माइनस का ये मतलब है कि इसका साइन जो है ना रिवर्स होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे इसी मोमेंट एट ओ हम 0 कर लेते हैं। तो मोमेंट के लिए हमारे पास, अब देखें ये इक्वेशन बन रही है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक तो ये मोमेंट एज इट इज आएगा इधर m प्लस डेल्टा m, ठीक है, ये मोमेंट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला मोमेंट भी आएगा इधर, जो सीधा सीधा m है, ठीक है, एक वो m आ गया ये वाला। तीसरी क्या चीज़ है हमारे पास, एक है डब्ल्यू एक्स डेल्टा एक्स। डब्ल्यू एक्स डेल्टा एक्स लग रहा है किस डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ ईटा डेल्टा एक्स। तो ये डब्ल्यू एक्स डेल्टा एक्स इंटू ईटा डेल्टा एक्स, तो बस। और हाँ, साथ में ये शेयर फोर्स है, तो ये शेयर इसको रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट। तो डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स, तो v डेल्टा एक्स। तो ये सारी हमारा इस पॉइंट के अबाउट ओ के अबाउट हमारा जो मूवमेंट हमने 0 कर लिया। अब हम किसके लिए, डेल्टा एम, चूंकि हमने शेयर और मूवमेंट निकालना है, तो बेसिकली हम शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम्स पर बीम वो निकाल रहे हैं। और हम निकाल रहे हैं किस एरिया के लिए, किस लोकेशन के लिए, हम इस डेल्टा एक्स के लिए। तो ओबियसली हमें डेल्टा फिर वी चाहिए और डेल्टा एम चाहिए। तो ये हमारे पास डेल्टा एम आ गया, इसको हमने रीअरेंज किया। तो वी डेल्टा एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स ईटा डेल्टा एक्स के। सो दीज वर द इक्वेशंस। अब हम क्या करते हैं कि ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास, और इनको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, और लिमिट हमने लगा दी कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दीज इक्वेशंस बिकम। अच्छा, बाकी आपको पता है ऑलरेडी कि आपने मैथमेटिक्स में ये डेरिवेशन और ये सारी चीज़ें की हैं, तो आई एज्यूम कि आप सबको नो हाउ होगी। तो जब हमने इसको डिवाइड किया डेल्टा एक्स के साथ और लिमिट लगा दी कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये मतलब इसकी डेरिवेशन की फॉर्म में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो और इसी तरह इट मीन्स के स्लोप ऑफ शेयर डायग्राम इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब v तो हमें पता है कि दिस इज द शेयर, और डब्ल्यू एक्स हमने पीछे फिगर में एज्यूम किया था, डब्ल्यू एक्स इज और दिस, द डब्ल्यू एक्स वो है जो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ से क्या मतलब एक बात जाहिर हुई कि स्लोप ऑफ शेयर डायग्राम जो है वो इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के इक्वल होती है। यानी कि जब हम स्लोप जब शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे, तो वो जो लोड ऊपर से लग रहा होगा वो उसके इंटेंसिटी के बराबर होगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर हुई। अब सिमिलरली यही प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं किस पे, इस इक्वेशन पे। तो देखें ये हमारे पास इक्वेशन बनी, ठीक है, इसको और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, चूंकि इसको हमने फिर 0 कर दिया तो ये सारा वाला सेगमेंट जो है 0 हो गया। और चूंकि ये जीरो अप्रोचेस टू यानी कि नियरली इक्वल टू 0, और ये 0 उसका स्केयर था, तो ये बिल्कुल ये सेगमेंट 0 हो गया। और डेल्टा इसके साथ तो ये हमारे पास डेल्टा मोमेंट डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी। तो इट मीन्स कि स्लोप ऑफ मूवमेंट डायग्राम इज इक्वल टू शेयर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे तो आप इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को देखेंगे, वो उसके इक्वल होगी। और इसी तरह जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे तो वो शेयर के इक्वल होगी। मतलब शेयर का जो एरिया होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो मूवमेंट, जो स्लोप ऑफ मूवमेंट होगा वो शेयर के इक्वल होगा। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखने वाली हैं, जो कि हमने ये पीछे जो भी फिगर देखी है उसको अंडरस्टैंड किया है। ऑलराइट, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं जिनको अब हमने क्या किया, इक्वेशन 4.1 4-1 and 4.2 can be integrated from one point to another between concentrated forces or couples in which cases। अब उन्होंने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। और डेल्टा वी हमारे पास चेंज इन शेयर इज इक्वल टू एरिया अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग डायग्राम, और इसी तरह चेंज इन मूवमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर शेयर डायग्राम। वही चीज़ें, बस पहले इसको वो डेरिवेशन की फॉर्म में था, अब इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। तो चेंज इन शेयर जो है वो एरिया अंडर लोडिंग डायग्राम के इक्वल है, और इसी तरह चेंज इन मूवमेंट जो है वो चेंज इन एरिया अंडर शेयर डायग्राम के इक्वल है, ठीक है। सो दिस वाज द साइंस।
अब यहाँ इस केस में हमारे पास क्या है, वहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू एक्स था, ठीक है, और यह इस केस में हमारे पास है फोर्स, सीधा सीधा एफ के साथ हमने उसको रिप्लेस किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे अगर वहाँ पे डेल्टा एक्स था, यहाँ पे हम एफ की फॉर्म में इसको डेरिवेट करें या सॉल्व करें, तो हमारे पास जो चेंज इन शेयर है वो आ जाएगा फोर्स के इक्वल, ठीक है, यानी कि एफ डाउन, दस व्हेन एफ एक्स डाउनवर्ड ऑन द बीम डेल्टा वी इज नेगेटिव सो दैट द शेयर डायग्राम शोज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये जो माइनस साइन है, यानी कि जब फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो शेयर जो है नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि इट मीन के जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो नीचे की तरफ बनेगी, बीम के नीचे की तरफ शेयर फोर्स, जब फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी तो शेयर फोर्स डायग्राम बीम के या फ्रेम जो भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उसके नीचे वाली साइड बनेगी, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह जब फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ या अपवर्ड एक्ट करेगी तो शियर फोर्स ऊपर वाली साइड बीम के अपर पार्ट की तरफ बनेगी, ठीक है, ये चीज। अब इसी तरह मूवमेंट, मूवमेंट के केस में देखते हैं कि अब डेल्टा एम इज इक्वल टू एम, ठीक है, इसमें नेगेटिव वाला सीन नहीं है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इन दिस केस इफ एन एक्सटर्नल कपल मूवमेंट एम डैश इज अप्लाइड क्लॉकवाइज डेल्टा एम इज पॉजिटिव, ठीक है, सो दैट द मूवमेंट डायग्राम जंप्स अपवर्ड when m acts counterclockwise, the jump delta m must be downward। तो ये यानी कि जब एक्सटर्नल मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी तो हमारी जो मूवमेंट डायग्राम है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, और इसी तरह जब मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारी जो मूवमेंट है वो नेगेटिव होगी, यानी कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और शेयर के केस में आपने याद रखनी है फोर्स डाउनवर्ड होगी तो शेयर, जब पॉइंट या फोर्स जो है एक्टिंग फोर्स वो डाउनवर्ड होगी तो शेयर फोर्स नीचे की तरफ बनेगी यानी कि नेगेटिव होगी, और इसी तरह फोर्स जब अपवर्ड होगी तो शेयर फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ बनेगी। अब यहाँ पे जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं तो अब उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे एक बीम है, ठीक है, उसकी दोनों साइड्स पे ये इस पॉइंट पे वी एल, इस तरह एम एल, ये एल और आर लेट्स से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे शेयर फोर्स वी एल होगा और मूवमेंट होगा एम एल। इसी तरह यहाँ पे वी आर और एम आर, ये पी ऊपर से कोई लोड लग रहा है, ठीक है। अब ये शेयर फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे देखें हमने कहा था कि जब अपवर्ड होगा, जब शेयर फोर्स अपवर्ड होगा तो डायग्राम ऊपर की तरफ बनेगी, जितना वी एल का मैग्नीट्यूड है उतनी यहाँ से ये लाइन ऊपर जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब ये यहाँ पे देखें आगे कोई फोर्स नहीं है टिल मिडल पॉइंट, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आगे आएगी। अब यहाँ से पी नीचे लग रहा है ना, तो शेयर फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ये देखिए पी ऊपर एनिमेशन में अभी ऊपर से नीचे आया तो ये नीचे की तरफ आ, अब पी का लेट से जितना भी मैग्नीट्यूड था उतनी ही ये लाइन हम यहाँ से नीचे ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बात यही की थी कि लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो शेयर फोर्स के बराबर है, ठीक है। अब ये जितना मैग्नीट्यूड था लोड का उतना ही हम इधर उसको नीचे लेके आए हैं, तो यहाँ से ये बात भी ट्रू हो रही है कि फोर्स नीचे होगी तो शेयर फोर्स डाउनवर्ड होगी। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है तो इट मीन कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब वी आर यहाँ पे एक फोर्स लग रही है जो कि आप देखें कि डाउनवर्ड है, तो इट मीन्स कि ये भी यहाँ से डाउनवर्ड होगी, ये डाउनवर्ड है, तो ये देखें अब जितना वी आर लेट से जितना भी था वो डाउनवर्ड था तो ये यहाँ पे आके मीट कर गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखना है कि जो शेयर फोर्स हो या बेंडिंग मोमेंट हो वो बीम के एक साइड से स्टार्ट होगा, एक कॉर्नर से जीरो से यानी कि स्टार्ट होगा और जीरो पे आके मीट करेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके केस में ट्रू नहीं होती तो इट मीन्स कि आपने कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक की है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये देखें ये इसकी इस फिगर की ये शेयर फोर्स, ये वाली शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड के इसी के लिए हमारे पास मूवमेंट डायग्राम कैसी बनेगी।
अच्छा, मूवमेंट डायग्राम के लिए हमने पीछे इक्वेशन में भी पढ़ा था कि मूवमेंट डायग्राम हमने ये पढ़ा था कि इक्वेशन जो शेयर फोर्स है उसके लिए जो शेयर फोर्स का जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर शेयर फोर्स होगा। इसी तरह जो मूवमेंट है वो एरिया अंडर द शेयर डायग्राम उसके बराबर होगा। तो हमने सीधा सीधा इसके एरिया के अंडर इसके एरिया के बराबर जो है ना शेयर फोर्स डायग्राम हमारी सॉरी मूवमेंट डायग्राम बनेगी। अब देखें यहाँ पे ये जीरो था तो स्ट्रेट था, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी जीरो था, ठीक है। अब ये उतनी एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली इस बीम की लेंथ की जितनी, ठीक है। अब ये देखें मूवमेंट है हमारे पास एम एल, और एम एल है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये देखें अपवर्ड, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो अपवर्ड मूवमेंट एम एल। अब क्या करते हैं, ये वाला एरिया, ये देखें ये जो ब्लू हो गया है ये वाला एरिया, अब ये एरिया कितना है, लेट्स से ये मिडल तक गया हुआ है तो ये इतना एरिया इसका होगा, ठीक है। अच्छा, ये आप एक बात याद रखनी है, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम कहते हैं कि 0 डिग्री कर्व। स्ट्रेट लाइन को 0 डिग्री कर्व कहा जाता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। और ये जो इस तरह से इंक्लाइंड लाइन हो इसको कहते हैं 1st डिग्री कर्व। और आगे जो सिंपल जो यूं करके कर्व लगी होती है यूं, ठीक है, उसको फिर 2nd डिग्री और फिर 3rd डिग्री कर्व होती है, ठीक है। तो अभी आपने मैं ये शेयर फोर्स वाली डायग्राम कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ ये कर्व्स के बारे में। तो ये आपका मोमेंट हो गया, ठीक है। मोमेंट हमारा यहाँ पे पॉजिटिव था तो अपवर्ड। इसी तरह ये जितना इसका एरिया था तो ये उतना ही हमने इसके एरिया अंडर द शेयर फोर्स डायग्राम ये हमने लाइन एक ड्रॉ कर ली मिडल तक। अब मिडल पे हमारे पास यहाँ से एक और मोमेंट आ रहा है यहाँ तक, वो आ रहा है वी एल इंटू ये वाला लेंथ, ठीक है। तो ये देखें अब यहाँ से ऑनवर्ड इसका एरिया फर्दर इसमें ऐड हो जाएगा। चूंकि ये जो आपके लिए एक्स एक्सिस से ऊपर है दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्दर ये ऊपर चली जाएगी लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके जो आपके लिए डिग्री है, डिग्री नहीं सॉरी एंगल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और मैग्नीट्यूड था यहाँ पे कुछ और मैग्नीट्यूड था। तो ये देखें, और फिर ये मोमेंट एम आर है तो एम आर उतना होगा कि ये इसको बैलेंस कर लेगा और यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। तो ये एम आर है, ये कंप्लीट इसका एरिया है, ठीक है। और ये देखें ये स्लोप है शेयर का, शेयर जो फोर्स है या शेयर ये वी एल की स्लोप है ये वाली लाइन, इसी तरह ये वी आर की स्लोप है ये वाली लाइन, ठीक है। और ये एम आर का मैग्नीट्यूड है, ये एम एल का मैग्नीट्यूड है जो सीधा सीधा उसने दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो स्लोप्स हैं ये हमें इसके एरिया से पता चलती हैं, वी एल के एरिया से और वी आर के एरिया से। अच्छा, अब जो बात मैं कर रहा था वो ये कि जब पॉइंट लोड लगा हो तो ये आप अपने पास लिख भी लें और हमेशा याद रखें, जब पॉइंट लोड लगा हो तो हमारी जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो 0 डिग्री बनेगी, 0 डिग्री कर्व बनेगी। और उसी के अगेंस्ट मूवमेंट के लिए हमारी 1st डिग्री कर्व बनेगी जो कि ये लगी है, ठीक है। ये जो इंक्लाइंड लाइंस हैं 1st डिग्री कर्व यानी कि ट्राइंगुलर शेप बनेगी मूवमेंट के लिए। यानी कि जब रेक्टेंगुलर शेप बने शेयर फोर्स के लिए तो ट्राइंगुलर शेप बनेगी मूवमेंट के लिए। इस तरह से याद रखें, वो थोड़ा ज़्यादा इजी है लेकिन टेक्निकली आपने याद रखना है कि दिस इज द 0 डिग्री कर्व एंड दिस इज द 1st डिग्री कर्व। अब एक और केस हम कंसिडर करते हैं कि जिसमें हमारे पास कोई फोर्स नहीं है सिर्फ मोमेंट्स ही हैं, मतलब ये जिस तरह पॉइंट लोड लगा हुआ था यहाँ पे सिर्फ मोमेंट्स ही हैं। तो इस केस में हमारे पास शेयर फोर्स क्या बनेगी, शेयर चूंकि है ही नहीं बिल्कुल नहीं है ज़ीरो है तो शेयर फोर्स डायग्राम ज़ीरो बनेगी, मतलब सीधी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये देखें ये ब्लैक इसको शो कर रहा था बीम को, लेकिन ये रेड रेड का मतलब है ये ऊपर वाली जो शेयर भी ज़ीरो है, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब मोमेंट्स का कंसेप्ट है यहाँ पे, अब चूंकि ये जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, 1st डिग्री कर्व होगी। आई समझ कि यहाँ पे ये जीरो था तो यहाँ पे 1st डिग्री सॉरी ये 0 डिग्री था, ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं था यहाँ पे तो शेयर फोर्स का था मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पॉइंट लोड था 0 डिग्री और यहाँ पे 1st डिग्री। अब इसी तरह यहाँ पे कोई लोड ही नहीं है तो शेयर ऑलरेडी जीरो है
तो यहाँ पे मूवमेंट हमारे पास जिसे कहते हैं मूवमेंट हमारे पास 0 डिग्री बनेगी, ठीक है। यानी कि हमेशा मूवमेंट का जो है ना, मूवमेंट की जो फिगर है डायग्राम है वो 1 डिग्री आगे होगी, ज्यादा होगी शेयर से। तो यहाँ पे शेयर है ही नहीं, तो मूवमेंट यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा तो वो वही शेप बनाएगी, ठीक है। तो ये पहले एम एल का मैग्नीट्यूड ये वाला। अच्छा एम एल देखें क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, तो हमारा मूवमेंट अपवर्ड जा रहा है। अब इसी तरह ये जो एम डैश है ये कोई एक्सटर्नल मूवमेंट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओबियसली डाउन मतलब नेगेटिव होगा। तो ये यहाँ से हमारी लाइन अब एम एम डैश की जितना भी मैग्नीट्यूड है वो उतनी नीचे लाइन आएगी, ठीक है। ये एम डैश, ये लाइन उतनी ही नीचे आ गई। इसी तरह हम आगे जाएंगे क्योंकि आगे और कोई मूवमेंट नहीं है। और एम आर क्या है जी, एंटी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऑब्वियसली जब एंटी क्लॉकवाइज है तो इट मीन्स के यहाँ से डाउनवर्ड लाइन आएगी, तो ये इसके दूसरे एंड को मीट कर गया, ठीक है। तो ये हमारे पास मूवमेंट डायग्राम है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। ये बीम्स के लिए। अब हम अगला केस डिस्कस करते हैं कि जिसमें हमारे पास यूडीएल लगा हुआ है। अब देखें पॉइंट लोड था तो 0 डिग्री और 1 डिग्री ये मूवमेंट है, ये सॉरी ये शेयर फोर्स है और ये मूवमेंट है। मैं एक मिनट अपना कुछ पेंसिल वगैरह ऑन करता हूँ। अच्छा तो देखें ये था पॉइंट लोड, तो ये था 1 डिग्री, ठीक है। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा थिक है। ये 1 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री। ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा? सॉरी यार। अच्छा ये देखें ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है। पॉइंट लोड था। अब यहाँ पे लोड था ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी बिल्कुल 0 है और ये 1 डिग्री। अब यहाँ पे यूडीएल है, तो यूडीएल के केस में हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो 1 डिग्री होगा। यानी कि 1 डिग्री यानी कि शेयर फोर्स 1 डिग्री का ये मतलब है कि शेयर फोर्स की डायग्राम जो है वो ट्रायंगुलर बनेगी। और इसी तरह जो बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम है वो 2 डिग्री कर्व बनेगी, यानी कि यूं वाली कर्व या यूं वाली कर्व या यूं वाली कर्व जो है वो बनेगी, ठीक है। तो पीछे अब इसका ड्रा करते हैं जी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ चलते हैं जी। लेट मी क्लियर देम फर्स्ट। ऑल राइट, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है जी। सबसे पहले हम शेयर के लिए देख रहे हैं तो वी एल। अब देखते हैं वी एल का कितना मैग्नीट्यूड है। वी एल ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है तो वी एल का मैग्नीट्यूड यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं जी, हमारे पास यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। तो यूडीएल है, इट मीन ये ट्रायंगुलर शेप बनेगी, ठीक है, 1 डिग्री। तो ये देखें जितना यूडीएल का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही यहाँ से ये नीचे आ गया, ठीक है। तो यूडीएल है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पे मैग्नीट्यूड वी एल था, ज्यादा था, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक कम होता जा रहा है, ठीक है। चूंकि डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो इस ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वी आर है। वी आर भी फर्दर डाउनवर्ड है, तो ये यहाँ से नीचे इधर आएगा। तो ये देखें ये वी आर। तो ये हमारी बन गई शेयर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री कर्व, ठीक है। अब हम ड्रा करते हैं इसके लिए मूवमेंट डायग्राम। तो मूवमेंट डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास एम एल है,
जो कि क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड एक हमारी जो फिगर है ये अपवर्ड जाएगी, ठीक है, ml अपवर्ड, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है जी यूडीएल है, और अब हम ये भी कर सकते हैं कि जब हमारे पास इसका एरिया होगा, एग्जैक्टली इसकी रीडिंग्स होंगी, मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में, फिगर्स में, तो हम फिर क्या करेंगे कि फिर हम डायरेक्ट इसका एरिया भी कैलकुलेट करके इसकी फिगर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में आप देखें ट्रायंगुलर था, तो ये सेकंड डिग्री कर्व जो मैंने आपको पीछे बताई थी, तो ये सेकंड डिग्री कर्व है, ठीक है। अब आप इधर तक आ गए, अब देखें इधर से फिर एम आर लग रहा है कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमें पता है कि नेगेटिव है, मूवमेंट जो है डाउनवर्ड ड्रॉ होगी। तो अब यहाँ से नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट जो है हम ड्रॉ करते हैं, तो ये एम आर, तो ये एम आर का मैग्नीट्यूड, तो ये देखिए यहाँ पे भी जीरो मूवमेंट, यहाँ पे भी जीरो, एंड्स पे दोनों एंड्स पे मूवमेंट भी और शेयर फोर्स भी जीरो जीरो हो जाती है। तो ये जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जब तक ये जीरो जीरो नहीं होती, तो इट मीन्स के आपकी कैलकुलेशंस में कोई गड़बड़ है। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। तो ये 0 डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, यानी कि मूवमेंट वाली जो मूवमेंट डायग्राम की जो फिगर है, उसकी डिग्री हमेशा एक ज्यादा होगी शेयर फोर्स से, ठीक है। तो ऑलराइट जी, आगे चलते हैं। ये स्लोप ऑफ वी आर है, ये स्लोप ऑफ वी एल है, ठीक है। तो लेट मी क्लियर, ऑलराइट। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है एक और केस कि जिसमें पीछे हमने पॉइंट लोड भी देखा, फिर हमने यूडीएल भी देखा, अब हमारे पास लोड जीवीएल है। तो इस केस में क्या होगा? अच्छा, ये हमें पता है कि एक मिनट में यहाँ से आपको ड्रॉ करके बताऊं, एनोटेट, हाँ। अच्छा, ये हमें पता है कि दिस इज shear फोर्स, दिस इज मोमेंट, ठीक है। अब पीछे था कि यानी कि यूडीएल था तो हमारी shear फोर्स की डायग्राम फर्स्ट डिग्री थी। अब जीवीएल है तो हमारी shear फोर्स की डायग्राम सेकंड डिग्री होगी, और इसी तरह बेंडिंग मोमेंट की जो डायग्राम है वो थर्ड डिग्री कर्व बनेगी, ठीक है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मूवमेंट जो है वो एक डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो ये जीवीएल के केस में शेयर फोर्स सेकंड डिग्री कर्व और मूवमेंट जो है थर्ड डिग्री कर्व। तो अब हम शेयर फोर्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वी एल है और अपवर्ड है, तो यहां से भी वी एल अपवर्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये वी एल ये अपवर्ड चला गया। अब चूंकि ये जीवीएल है और डाउनवर्ड है, तो यहां से ये फिगर जो है ना नीचे की तरफ आएगी, यूं कर्व की फॉर्म में नीचे की तरफ, ठीक है। ये डाउनवर्ड है, ये नीचे की तरफ, ये यूं नीचे आ गया, और ये वी आर का मैग्नीट्यूड है, यहां से ये नीचे इधर आ जाएगा, ये। तो ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई सेकंड डिग्री कर्व फॉर जीवीएल, ठीक है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ये स्लोप है W1 का, और इस तरह ये वाली जो स्लोप है ये W2 का स्लोप, और बाकी VL और VR तो एग्जैक्टली हमें साइड वो एंड स्पोर्ट रिएक्शंस है या एंड रिएक्शंस है वो हमें पता होते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मूवमेंट डायग्राम के लिए ओब्वियसली अगर ये सेकंड डिग्री कर्व थी तो थर्ड ये वाली थर्ड डिग्री कर्व होगी। मूवमेंट में हमारे पास सबसे पहले ML है जो कि क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज हमें पता है कि यहाँ से अपवर्ड फिगर जाएगी, ठीक है। तो ML का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी आप स्ट्रेट लाइन एक ऊपर ले जाएंगे। तो ये देखें, ये ML जितना था तो इतनी ML हमारी एक स्ट्रेट लाइन ऊपर चली गई है। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ तक, और हमारे पास है क्या, UDL है, सॉरी GVL है और डाउनवर्ड है। तो ये देखें, ये अब दिखने में तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन सेम है, लेकिन इसकी थर्ड डिग्री कंसिडर होगी, इसकी सेकंड डिग्री कंसिडर होगी, ठीक है। ये डाउनवर्ड है, तो ऑब्वियसली मूवमेंट जो है यहाँ से
मूवमेंट और शेयर जो है ना रिवर्स होता है। जहाँ पे शेयर फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पे मूवमेंट कम होता है, और जहाँ पे मूवमेंट और इसी तरह जहाँ पे शेयर फोर्स कम हो वहाँ पे मूवमेंट मैक्सिमम होता है। तो आप यहाँ पे देखें शेयर फोर्स मैक्सिमम है तो यहाँ पे मूवमेंट जो है मिनिमम है। इसी तरह यहाँ पे शेयर फोर्स मिनिमम है तो यहाँ पे मूवमेंट मैक्सिमम है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी। ये अपने पास जब आप ये लेक्चर सुनेंगे तो ये अपने पास रिकॉर्ड आप नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं, ये चीज़ें आपको काम आएंगी, ये कॉन्सेप्ट्स। अब ये मूवमेंट है हमारा एम आर, ठीक है। तो नीचे आए, जितना एम आर का मैग्नीट्यूड था उतनी एक लाइन हमने ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर दी, तो यहाँ से 0 और 0 मीट कर गया। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ मूवमेंट डायग्राम्स फॉर GVL। तो ये VL का स्लोप है, VL सॉरी ML का, या VL का ये वाला, और इसी तरह ये वाला VR का स्लोप। दैट्स इट। अच्छा, ये था केस के जब मैग्नीट्यूड यहाँ से इस तरफ से इस तरफ जाते हुए इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ही है ना, मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है GVL, लेकिन मैग्नीट्यूड लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करें तो आपका मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज कर रहा है। यानी कि मैग्नीट्यूड, एक मिनट मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैग्नीट्यूड हमारा यूं जा रहा है, ठीक है। और अगला हमारा जो केस है इसमें मैग्नीट्यूड हमारा यूं जा रहा है, मतलब इस लेफ्ट साइड पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है शेयर फोर्स का, और इसी तरह लेफ्ट राइट साइड पे कम है। तो अब देखें यहाँ पे भी फिगर बनेगी लेकिन इसके रिवर्स होगी, मतलब शेयर फोर्स यहाँ पे मतलब इसके ऑपोजिट होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड में, बाकी कर्व्स जो हैं वो ऐसे ही होंगी, डिग्री कर्व की सेम रहेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिवर्स हुआ है, जहाँ उल्टा उल्टा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे W1 ज्यादा था, यहाँ पे W1 कम था, यहाँ पे ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पे W2 जो है ये वाला, यहाँ पे W2 ज्यादा था और यहाँ पे W2 कम है। इसी तरह ये यहाँ पे जो था वो कम था और यहाँ पे ये ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसकी डायग्राम जो है डिस्कस करते हैं कि वो कैसे बनेगी। तो ये देखें VL मैग्नीट्यूड, अगेन जितना होगा उतनी आप लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे W1 जो है ना, ये GVL ये ज्यादा है और इधर कम होता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो इधर फिर इस तरह से रिवर्स फिगर बनेगी, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ इस तरह से फिगर बनेगी, ठीक है। और यहाँ से जितना VR का मैग्नीट्यूड होगा तो इतना हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो ये W1 का स्लोप है और इसी तरह ये W2 का स्लोप है। सिमिलरली ये मूवमेंट की डायग्राम हम बनाते कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो पॉजिटिव अपवर्ड जाएंगे हम, ठीक है। फिर इसी तरह ये इस तरह से फिगर, ठीक है, और ये MR, दैट्स इट। ये VL का स्लोप और ये VR का स्लोप। ऑल राइट जी। सो मैं ये जो डायग्राम, ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं फिर पेज पे सॉल्व करके और साथ में वीडियो बना के वो अपलोड करता हूँ। तो ये थी यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो हम इंशाल्लाह अपने दूसरे लाइव सेशन में या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट। बाकी मैं ये प्रॉब्लम जो है 1 बाय 1 सॉल्व करके फिर आपसे वो भी शेयर करता हूँ। तो स्टॉप करते हैं फिर आज के लिए।